السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر بشریٰ رحمان ہوں۔ میرا تعلق فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ میں آج آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کا مقصد ڈائبٹیز یا ذیابیطیز کے حوالے سے عام لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد پوری دنیا میں 422 ملین تک پہنچ چکی ہے، جن میں اکثریت ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں پائی جاتی ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ ہر سال 1.5 ملین افراد اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد 26.7% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک شرح اضافہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں ہم اس بات کا احاطہ کریں گے کہ ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے، اور اگر کسی میں اس بیماری کی علامات خدا نخواستہ ظاہر ہو جائیں تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر انیلا شبیر کو دعوت دی ہے، جو کہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ آج ہم نے ڈائبٹیز کے بارے میں یہ ایک اویئرنیس پروگرام رکھا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ڈائبٹیز ہے کیا۔ آپ نے بہت اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اور اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے جہاں پہ کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد موجود ہے۔ پہلے 2 نمبر پہ چائنا اور انڈیا آتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان مریضوں کی تعداد میں کیوں اتنا اضافہ ہوا ہے یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ جہاں تک سوال ہے آپ کا، جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ڈائبٹیز ہے کیا، تو ڈائبٹیز کو ہم عام زبان میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں، اور یہ وہ بیماری ہے جس میں خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور کئی دفعہ یورین میں بھی شوگر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایکچولی ہم جو بھی ڈائٹ لیتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس کا ایک میجر پورشن ہوتا ہے، اور وہ گلوکوز کی فارم میں خون میں ایبزارب ہو کے تو ہمارے ڈفرینٹ ٹیشوز تک پہنچتا ہے۔ صحیح۔ جب گلوکوز ہم لیتے ہیں تو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں، اور اس انسولین کا کام یہ ہے کہ اس نے اس گلوکوز کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ صحیح۔ اگر انسولین کی کمی ہو جائے یا انسولین بنے لیکن وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہ کر سکے، جس کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، تو اس کیس میں یہ گلوکوز جو ہم کھانے کے ذریعے ہمارے خون میں پہنچ رہی ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہوتی، اور اس کی مقدار آہستہ آہستہ خون میں بڑھتی رہتی ہے، اور اس بیماری کو ہم ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری کہتے ہیں۔ اور جو جتنے بھی پرابلمس اس بیماری میں آتے ہیں وہ ایکچولی اس شوگر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہیں، جو ڈفرینٹ ٹیشوز میں اور سیلز میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان بھی دنیا میں اب تیسرے نمبر پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے، تو آپ کیا مطلب سمجھتی ہیں کہ ان تیزی سے بڑھتی ہوئی جو شرح ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے وہ میں کہوں گی کہ ہمارے طرز زندگی میں یا ہمارے لائف سٹائل میں جو کچھ عرصے میں چینجز آئی ہیں وہ سب سے بڑی ریزن ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے بزرگوں سے یا اپنے آباء و اجداد سے کمپیئر کریں تو نہ ہماری خوراک اب وہ ہے جو وہ لوگ لیتے تھے، وہ بہت سمپل فوڈ لیتے تھے۔ ہم بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ لے رہے ہیں، کینڈ فوڈ لے رہے ہیں، ہم کولڈ ڈرنک زیادہ لے رہے ہیں، ہم چینی کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے لوگ۔ پھر وہ لوگ ہول گرینز لیتے تھے، ہم ریفائنڈ شوگرز لے رہے ہیں، ہم میدے سے بنی ہوئی چیزیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم بیکری آئٹمس بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈائٹ میں جو ہمارے کچھ عرصے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، ایک یہ ریزن ہے۔ دوسری امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں۔ سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ اب ہمیں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز ہیں، ہم کہیں بھی جانے کے لیے ہمیں چلنا نہیں پڑتا، ہمیں کوئی ورزش نہیں کرنی پڑتی، کوئی فزیکل ایگزرشن نہیں کرنی پڑتی، بس ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہم خود سہل پسند ہو گئے ہیں، ہم ٹائم نہیں نکالتے کہ ہم ورزش کر سکیں۔ پھر
अगर आप देखें तो कई जगह पे लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके पास प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं, पार्क्स नहीं हैं। पहले के मुकाबले में आप देखें तो लोग छोटे घरों में रह रहे हैं। जी जी। बहुत कम लोग हैं हमारे जिनके पास बड़े घर हैं और बड़े लॉन्स हैं या सहन हैं। पहले हर घर में सहन होता था, खुली जगह होती थी, लेकिन अब घर भी छोटे हो गए हैं और बाहर भी आपके खेलों के मैदान नहीं रहे। अगर आप अपने स्कूल्स देखें तो छोटे छोटे घरों में स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल ही नहीं है, बच्चों को वो जगह ही नहीं मिल रही जहाँ पे कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश या खेल कूद कर सकें। उसके साथ मेरा ख्याल है जो अब सोशल मीडिया और गैजेट्स ज़्यादा हो गए हैं, उनकी वजह से भी बच्चे इंडोर गेम्स खेल रहे हैं। हर बच्चा, हर बड़ा घर में अपने गैजेट लेके बैठा है, उस पर बिजी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि एक तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, फिर डाइटरी चेंजेस हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ मोटापे की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। सही। पाकिस्तान कहने को लो इनकम कंट्री है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ओबीस, ओवरवेट लोगों की शरह बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि डायबिटीज़ और मोटापे का साथ है, लाज़िम मलज़ूम आप समझें। जहाँ पे मोटापा होगा वहाँ पे डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे डायबिटीज़ की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि क्या डायबिटीज़ की कोई इकसाम भी हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आम तौर पे तो यही एक ख्याल किया जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो मिडिल एज में ही जाके स्टार्ट होती है, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है, किसमें है? देखिए डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और दूसरे को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जो बच्चों में होती है, अर्ली एज ऑनसेट होता है, और इस डायबिटीज़ को हम गोलियों से या दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन ही मरीज़ को देने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी शरह बहुत कम है। 90% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनका ताल्लुक टाइप 2 डायबिटीज़ से है। अच्छा। और टाइप 2 डायबिटीज़ ख़ास तौर पे वो टाइप है जो कि जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो आपके वेट गेन के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 होंगे। और जो अभी आपने बात की कि मिडल एज में जो टाइप हम देखने को मिलती है वो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। लेकिन अभी कुछ अरसे में टाइप 2 डायबिटीज़ भी बहुत अर्ली इसके केसेस आ जाते हैं। पहले अगर ये 40 के बाद आती थी तो अब 30s और इवन 20s में भी टाइप 2 डायबिटीज़ स्टार्ट हो गई है। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये दो मेन टाइप्स हैं जिसमें जैसे मैंने कहा कि 90% से ज़्यादा तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और कुछ जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ के हैं। एक तीसरी टाइप जिसका हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा। गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो टाइप है जो कि हामला ख़वातीन में होती है। हमल के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे हार्मोन्स बन रहे होते हैं जिनको हम जो हमल के दौरान नॉर्मली बनते हैं, लेकिन वो इंसुलिन को काउंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हर प्रेग्नेंट वुमन को, हर प्रेग्नेंट औरत को अपना रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए। और अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद हालांकि ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उनमें 50% तकरीबन बाद में जाके फुल फ्लेज डायबिटीज़ डेवलप कर लेती हैं। तो अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है तो उसको भी ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, रेगुलरली स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और अगर वो ओवरवेट है तो उसको अपने वेट का भी ख्याल रखना चाहिए, अपना डाइट और हर चीज़ का ख्याल रखे ताकि बाद में वो इस मूजी मर्ज़ का शिकार ना हो। इट मीन्स कि वो हाई रिस्क हो जाती हैं। वो हाई रिस्क होते हैं, बिल्कुल। तो डॉक्टर इनला ये बताएं कि इस बीमारी की फॉर एग्जांपल अगर किसी में अलामात ज़ाहिर हो गई हैं और अब उससे आगे क्या करना है, डॉक्टर के पास जाए, कौन से टेस्ट होंगे जो करवाने चाहिए, किस तरह से प्रोसीड करें? देखिए डायग्नोसिस के लिए तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। आप सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आप घबराएं। अच्छा। आप ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो भी अद्वियात आपको तजवीज़ करता है आप वो लेना शुरू करें। डॉक्टर आपको वो सारी
अद्वियात भी देगा और साथ आपको ये मशवरा भी देगा कि आप कैसे अपने ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। तो टेस्ट आप ज़रूर करवाएं, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। अच्छा। आमतौर पे ब्लड का टेस्ट होता है और जी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूरिन का टेस्ट होगा। अच्छा। और अब तो मैंने देखा है कि अक्सर घरों में ग्लूकोमीटर भी अवेलेबल होता है, आप खुद भी अपनी स्क्रीनिंग के लिए भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने 8 घंटे तक कुछ खाया पिया ना हो, ठीक है, तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक है तो फिर आप बॉर्डर लाइन हैं, आप उन लोगों में शामिल हैं जो एट रिस्क हैं। अच्छा। और जो बाद में जिनको डायबिटीज हो सकता है तो इनको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं। ठीक। और अगर 126 या उससे ज़्यादा आपका आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ है। ये WHO का क्राइटेरिया है। सही। तो अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और डॉक्टर आपको फर्दर टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जिस तरह हीमोग्लोबिन A1C, वो भी खून के टेस्ट हैं, वो आपके हो जाते हैं। और एक दफ़ा जब आपका डायग्नोसिस हो जाता है, आपको जो भी अद्वियात डॉक्टर तजवीज़ करता है, आपको चाहिए कि वो रेगुलरली लें, अपने चेकअप्स आप रेगुलर करवाएं और उसके साथ साथ जो भी आपको परहेज़, एहतियात और मज़ीद मशवरे देते हैं आप उनको ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल सही। तो अब जिस तरह से कि टेस्ट तक तो हम पहुंच गए हैं, तो अब ये बताएं कि इससे बचना कैसे है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, बचने के लिए अच्छी बात यह है कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी से भी बच सकते हैं जी। और अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाती है तो वो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं जी। उसमें सबसे पहले नंबर पे तो आपकी डाइट आती है। ठीक, बिल्कुल। आपको आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि अगर किसी को शुगर का मर्ज हो गया है तो उसने सिर्फ मीठी चीज़ों से परहेज़ करना है जी। ऐसा नहीं है। अच्छा। आपने सिर्फ मीठी चीज़ों से परहेज़ नहीं करना, वो तो सबको पता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने, आपने स्वीट डिशेस नहीं खाने, आपने मिठाइयाँ नहीं खानी, चाय में चीनी बंद कर देनी है। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ और एहतियात भी करनी होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट से जो आप रिफाइंड चीज़ें हैं जैसे मैदे की बनी हुई अशिया है उनका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। अच्छा। आप होल ग्रेन्स लेना शुरू करें। अगर आप सफ़ेद आटा खा रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल बंद कर दें। आप चक्की आटा या पूरी गंदम खुद लेके पिसवा सकते हैं तो बिल्कुल सही, आप वो इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप अपनी ग़िज़ा में सलाद और फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालें इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने पोर्शन साइज़ को रिड्यूस कर दें। अच्छा। ठीक, बजाय इसके कि आप 2-3 रोटियां और सालन इकट्ठा खाएं, आप उसको कम कर दें। और एक डायबिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा एक प्लेट मेथड है कि आप बजाय इसके कि बड़ी डिनर प्लेट लें, आप 9 इंच डायमीटर की एक प्लेट लें। ठीक है। उस प्लेट को हाफ आप फिल कर दें, उसमें कोई भी सैलड, वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करें। सही। हाफ में वो होना चाहिए। बाकी 1/4 में आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन रखें। वो आपके चावल भी हो सकते हैं, आपकी रोटी हो सकती है, जो भी आप लेना चाहें जी। और जो बाकी क्वार्टर बचा है उसमें आप प्रोटीन्स का पोर्शन रखें। अच्छा। प्रोटीन्स में आप कोशिश करें कि लीन मीट हो या मतलब बगैर चर्बी के गोश्त हो और आप उसमें फ़िश ले सकते हैं, आप उसमें चिकन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वो चीज़ें नहीं ले रहे तो आप उसमें चने ले सकते हैं, वो भी प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। दालें ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको प्रोटीन्स प्रोवाइड करे। ठीक है। 1/4 आपकी प्लेट में वो होना चाहिए। सही। तो आप अपना पोर्शन साइज रिड्यूस करें, एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट लें। आपको फाके करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको जो खाना है वो ज़रा आपको कॉन्शियस होके और अच्छी हेल्दी खुराक लेनी है। सही। फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह का भी कोई बिल्कुल रोल है? दूसरा काम, ये तो ग़िज़ा की हमने बात की जी। दूसरा आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है और फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप आधा घंटा कम से कम रोज़ाना निकालें जिसमें आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, हमारे यहाँ
एक जो मसला होता है वो ये कि हम में से हर कोई ना कोई काम कर रहा होता है, इवन जिनको हम हाउस वाइफ्स लेबल करते हैं वो भी शायद ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती हैं, वो घर के काम कर रही हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, तो वो अक्सर कहती हैं कि हम तो ऑलरेडी इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि फिजिकल एक्टिविटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है वो रूटीन में जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा वो आधा घंटा एक डेडिकेटेड निकालें जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास वॉकिंग ट्रैक अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप घर पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं आप, लेकिन आधा घंटा आपने वर्जिश ज़रूर करनी है। बिल्कुल सही। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि आप वेट अपना कम करें, उसको नॉर्मल रेंज में लेके आएँ। फिर अगर आप स्मोकर हैं तो आपने स्मोकिंग ख़त्म करनी है। बिल्कुल सही। स्मोकिंग की वजह से डायबिटीज़ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं। सही। और आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रखना है। स्ट्रेस फ्री का मतलब है कि देखें स्ट्रेसेस हर किसी की लाइफ में होते हैं। बिल्कुल। तो आपने कम से कम 6 hours to 8 hours की आप एक स्लीप लें, अपना पैटर्न आप ठीक रखें। ये जो हमारी आदत बन गई हैं कि लेट नाइट जागते रहते हैं और फिर सुबह सुबह उठ के सारे अपने कामों पे भागते हैं, ये आपके स्ट्रेस लेवल में इजाफा करते हैं। आप टाइम पे सोएं, अच्छी साउंड स्लीप लें ताकि सुबह आप फ्रेश हों, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक तरह से ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। आपको अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना पड़ेगा उसमें, और आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जो कुछ आप खा रहे हैं, जो अद्वियात आप ले रहे हैं, और जो फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और जो आपकी लाइफ की रूटीन है, अगर आप ये एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं तो ये बीमारी आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक, बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में ये बताया कि हमें क्या लेना है, क्या खाने में कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी नहीं खानी। और लेकिन फिर खाने पीने के हवाले से ही थोड़ा सा मज़ीद आगे बात करूँगी कि डायबिटिक्स जो हैं क्या वो भी फ़ास्ट फूड ले सकते हैं? जैसे आप जानती हैं ना कि फ़ास्ट फूड का ज़माना है और टेस्टी है, हर एक का दिल चाह रहा होता है और बड़ा फ्रीक्वेंटली हम खा रहे होते हैं, तो डायबिटिक्स कितना फ़ास्ट फूड ले सकते हैं? देखिए, जो जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है जी तो आप ले सकते हैं, ये बात नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक गुड प्लेट मेथड है, आपने वो फॉलो करना है। आप अपना प्लेटर पिज़्ज़ा से भी इस तरह का बना सकते हैं, वो इस तरीके से कि आपकी चॉइस हेल्दी होनी चाहिए। देखिए उसमें आपके पास चॉइस है कि आप थिन क्रस्ट लेते हैं या थिक क्रस्ट लेते हैं। आप थिन क्रस्ट ऑप्ट करें। थिन क्रस्ट के अलावा टॉपिंग में आप कोशिश करें कि आप वेजी पिज़्ज़ा ले लें। अगर वेजी पिज़्ज़ा नहीं पसंद तो आप एडिड जो हम चीज़ डलवा लेते हैं और वो चीज़ें लेते हैं वो आप ना करें। प्लस आपने एक दफ़ा में बैठ के पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाना, आप उसका 1 या मैक्सिमम 2 स्लाइस लें, और हाफ प्लेट, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाफ प्लेट में आप 2 स्लाइस रखें और हाफ प्लेट आपकी सब्जियां और सैलेड उससे भरी होनी चाहिए, वो आप ले लें। तो ये भी आपके लिए एक हेल्दी डाइट के कम से कम इक्वल हो जाता है। अच्छा, तो क्या ये जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं अगर आप कोशिश करें तो आप उनको अवॉइड ही करें, चाहे वो डाइट हैं या डाइट नहीं है, किसी भी फॉर्म में है। आप पानी पिएं। आप अगर आपका बहुत दिल करता है तो आप घर पे खुद जूस बना लें, फ्रेश जूस जो है वो। लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जूस भी ऑप्ट ना करें, क्योंकि अगर आप पूरा फ्रूट खाते हैं तो आपको उसका फाइबर भी मिलता है। बिल्कुल सही। और दूसरा, आप कम फ्रूट फिर खाएंगे। अगर आप जूस निकालते हैं फ्रेश फ्रूट का खुद भी, तो एक तो आपने उसका फाइबर निकाल दिया, और दूसरा आपको एक ग्लास भरने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स का जूस निकालना पड़ता है, तो वो फिर आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप परहेज करें, पानी पिएं, जो ड्रिंक अल्लाह ताला ने बनाया वो पिएं। तो वज़न का भी और फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी हम लोग अभी यही बड़ी डिटेल से बात कर रहे थे कि वज़न जो है वो डायबिटीज़ के साथ उसका बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है, और जैसे कि हम जानते भी हैं कि 50% लोग पाकिस्तान में इस वक्त मोटापे का शिकार हैं। तो वज़न जो है उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए? देखें, वज़न कंट्रोल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब है आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, आपको फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। देखिए,
अल्लाह ताला ने इतदाल का कहा है तो किसी वजह से कहा है। आप इतदाल के साथ खाएं पिएं, आप हर काम विद इन लिमिट्स करें तो आपके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं होते। आप एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। तो वज़न आप अपने वज़न पे चेक रखें और आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान तरीका है जिसको हम BMI कहते हैं। आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा। आपने अपनी हाइट मेजर करनी है मीटर स्क्वायर में और आपने अपना वेट इन kg लेना है। आप कहीं से भी खुद कैलकुलेट करना चाहें तो खुद भी इनको डिवाइड करके आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चार्ट्स की मदद से करना चाहें वो भी कर लें। अच्छा। नेट पे आपको BMI कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं और आपका BMI आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका 25 से कम रहे। अच्छा। नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स का जो वेट होना चाहिए वो 25 से कम होना चाहिए। सही। अगर 25 से 30 के रेंज में आता है तो आप ओवर वेट हैं। ठीक है। फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएं। और अगर 30 से क्रॉस कर जाता है तो फिर तो आप बाकायदा मोटापे का शिकार हैं, आप ओबीस पर्सन्स में आ जाते हैं। तो अपना BMI पे आप चेक रखें। अच्छा। रेगुलर वेट करें और BMI कोशिश करें कि 25 से कम रहे और 30 से तो डेफिनेटली कम रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर नीला ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मरीज़ जो है उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस तरह से बहुत एहतियात करनी है और बड़ा मेंटेन्ड किस्म की एक रूटीन रखनी है, तो अगर शुगर कंट्रोल ना हो सके तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ वगैरह भी पैदा हो सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, अगर किसी भी मरीज़ का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है जी तो उसकी वजह से उसे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती। ठीक है, उसको सिम्टम्स अपीयर होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे बार बार पेशाब का आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, लेकिन इससे ज़्यादा ये कोई ये नहीं है कि मैं कहूँ कि इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही होती है। ठीक, लेकिन जो इसका प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर आपके लंबे अरसे तक ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स बहुत ज़्यादा रहें तो फिर आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में ये ब्लड ग्लूकोज जमा होना शुरू हो जाता है और वो ऑर्गन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपकी आंखों के मसाइल आते हैं। अच्छा। कैटरेक्ट्स डेवलप होते हैं और कई दफ़ा तो आपकी बिनाई भी जा सकती है। बिल्कुल सही। आंखों के अलावा आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं ज़्यादा शुगर की वजह से। जी। आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी वेसल्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। सही। उसके अलावा आपको फॉलेज का अटैक हो सकता है। फिर आपके नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। फिर आपके पाँव जो हैं उनमें गैंग्रीन डेवलप होना शुरू हो जाता है और कई दफ़ा तो एम्पुटेशंस करनी पड़ती हैं। आपने शायद देखे भी हों केसेस जिसमें फुट की या लेग्स की एम्पुटेशंस करनी पड़ जाती हैं। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और अपने ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखें, कंट्रोल में रखें। तो ये बताएं कि डायबिटिक फुट जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ अपने पैरों की किस तरह एहतियात करें? देखिए, जिनको भी डायबिटीज़ हो जी, उनको चाहिए कि एक तो अपने पाँव डेली बेसिस पे नीम गर्म पानी से धोएं। अच्छा। और धोने के बाद कोई भी लोशन, मॉइस्चराइज़र वो ऊपर अप्लाई करें ताकि वो सॉफ्ट रहें। अच्छा। उनमें क्रैक्स ना हो और बाकायदगी से अपने पाँव का मायना भी करें। अच्छा। अपने पाँव आप जब भी आप धोएं उनको, उसके बाद उनको गौर से देखें, कहीं भी कोई क्रैक, कोई अल्सर, कोई ज़ख़म कुछ बना हो तो आपको चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें, उसका प्रॉपर इलाज करें, उसकी केयर करें। क्योंकि ग्लूकोज के मरीज़ों में जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है उनमें वूंड हीलिंग नहीं होती, उनमें ज़ख़म भरते नहीं हैं जल्दी। तो अगर ये एक दफ़ा ये प्रोसेस शुरू हो जाए और आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी अगर ज़्यादा ही रहते हैं तो फिर ये इसकी हीलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये रेगुलरली चेक भी करें और स्पेशली जूते ख़रीदते वक्त ये बहुत एहतियात करें। इस तरह के कोई शूज़ आपने नहीं पहनने जो आपको तंग करें, जो आपको इल फिटेड हों या बहुत लूज़ हों, कहीं फ्रिक्शन कर रहे हों या पाँव में ज़ख़म कर रहे हों। सॉक्स भी आपने सॉफ्ट लेनी है, कॉटन की सॉक्स लें आप, नायलॉन की अवॉइड करें और इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमीला, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज हमारे साथ शेयर की है और नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब आज के इस सेशन से मिले होंगे और आपके बहुत सारे कंसर्न्स भी रिजॉल्व हुए होंगे। जैसा कि मशहूर कहावत है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट में एतदाल रखें और फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्पेशली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं।
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر انیلا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.